everyone, welcome to your today's session of current affairs. Today is Monday. I am Drishti and we are back again with your current affairs from your section of polity and governance जो last week news में थे because of some national or international importance. ठीक है जी, these topics are going to help you in your answer writings in both prelims and your mains examination. So let's get started and सबसे पहले शुरू करते हैं आपका आज का सीज द मेंस के क्वेश्चन से. सो सीज द मेंस इज द फ्री इनिशिएटिव दैट वी हैव बीन प्रोवाइडिंग यू. यू कैन राइट योर आंसर्स, व्हाटएवर क्वेश्चन वी प्रोवाइड उससे रिलेटेड यू कैन राइट योर आंसर्स एंड द सेम आंसर यू कैन पोस्ट ऑन आवर वेबसाइट जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्रॉम वेयर इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड दे विल गिव यू रिव्यू. The whole process is entirely free of cost and you can gain the maximum benefit out of the whole process, the whole exercise. Right now let's get started. आपका question देख लेते हैं. Seize the mains का क्या है थोड़ा सा. I'm going to discuss a little bit of the topic I'm going to discuss with you right now. बाकी the rest of it you'll get to know with जो आपका evening में Seize the mains की video आएगी उसमें you'll know the exact answers and that will help you in knowing where you're lacking in your answer writing practice. Now your question for today is, what are election manifestos? Now explain the significance and challenges of election manifestos. ये पूरा question if you see this is in 3 parts. ठीक है, the main aspect is you have to address जितने parts हैं question के सारे sub parts you have to answer them. Now what are election manifestos? This is your first part. What are the significance and challenges? Significance आया आपका second question and again challenges आया आपका third part of the question. So you have to make it a point कि आपको ये answer provide करना है and ultimately you have to conclude your answer with a way forward. ठीक है, जिसमें आप suggestions देंगे how to conclude your answer. ठीक है जी. So this is the question. इसके बाद आइए let's see the index. What is the index for today? Now there has been a mediation bill and news जो अभी propose करा गया है and there are certain aspects to it. Also there have been certain criticisms and loopholes in it. क्या है पूरा मुद्दा and how it evolved? We are going to discuss that. ये second topic is election promises. अभी पीछे भी जो freebies वाला topic है वो पूरा news में था. Now there are a couple of things election promises की that have been in news and Election Commission of India has made it a point to let the parties know that ये जो freebies distribution है जो ultimately आपके elections को hamper करता है, this is not some sort of practice that is valid in free and fair elections. So Election Commission उसको ये चीज़ validate नहीं करेगा. ठीक है, तो ये एक पूरा fiasco यहाँ पे create हो रहा है. We are going to discuss that. Then we are going to discuss युवा scheme. Recently it has been launched by Prime Minister of India. क्या है scheme? How it will help? We are going to discuss that. Right? Let's get started. Now, the first topic is mediation bill. Promotion and mediation concerns दोनों क्या हैं? ठीक है, let's see why this was in news पहले. Mediation bill was in news because recently it was introduced in राज्य सभा. बिल है आपका 2021 का. If you see 2021 का बिल है. Now Parliamentary Standing Committee on Law and Justice है. They have also given a couple of recommendations pertaining to your mediation bill. तो वो भी डिस्कस करेंगे what are the recommendations and कहाँ कहाँ पे ये valid है. ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं. Now statute की बात करें, so legislation की बात करें तो there is no standalone legislation for mediation in India, but there are several statutes जो कंसिडर करते हैं मीडिएशन प्रोविजंस को. ठीक है, पहला है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विच इज 1908. तो 1908 का आप देख सकते हो ये आज़ादी से पहले का है. ठीक है, ब्रिटिश एरा कॉलोनियल एरा का है. देन वी कम विद द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996. ठीक है, प्रिटी न्यू लेट 90s का है, आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम. देन वी कम विद कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. Right, there have been a lot of amendments that have come up in Companies Act of 2013, but it is still valid.
then we come up with Commercial Courts Act of 2015, and then there is Consumer Protection Act of 2019. So there is no particular standardized legislation or a law for mediation per se, but ये जितने भी laws हैं इसमें there are bits and pieces which cater to the needs of arbitration and mediation process in India right now. ठीक है, लेकिन एक concrete mediation law की ज़रूरत है which is in alliance with your Singapore Convention. क्या है Singapore Convention? We are going to see आगे. Now जो मीडिएशन एंड कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी है विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी ये. दे डिस्क्राइब्ड मीडिएशन एज ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल्टरनेट फॉर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ठीक है, बेसिकली वी इफ देयर इज अ इशू अराइजिंग बिटवीन पार्टीज ड्यू टू सम और अदर रीजन, सो ये कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी. नाउ सिंगापुर कन्वेंशन की बात करें ऑन मीडिएशन, अर्लियर इट वाज नोन एज योर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट एंड रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, जिसका नाम बदल के सिंगापुर कन्वेंशन कर दिया गया. एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू इट, इंडिया इज अ पार्टी टू इट. नाउ दिस इज अप्रोप्रिएट टू एनैक्ट लॉ गवर्निंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मीडिएशंस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सो मेथड्स जो है रिजॉल्विंग के डिस्प्यूट के विच आर ऑल्टरनेटिव फॉर लिटिगेशन इन कोर्ट्स. जनरली क्या करता है, इट यूजेस अ थर्ड पार्टी, थर्ड न्यूट्रल पार्टी विच सिट्स डाउन एंड जो भी आपके इश्यूज हैं दे न्यूट्रली लिसन टू देम, दे मेक इट अ पॉइंट कि यू रीच टू अ कंक्लूजन विच इज कंसेंटेड बाय बोथ द पार्टीज एंड उस इशू को रिजॉल्व करा जाए वहाँ से. Now they resolve all types of matters. All types of matters में they might include civil disputes as explicitly provided by the law. Also it is capable of providing a substitute for conventional methods of resolving disputes. Right? Now there are a couple of other terms जो आती हैं, conciliation, arbitration, mediation. क्या है एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको आगे confusion ना हो. ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं नेगोशिएशन की. नेगोशिएशन क्या है? ट्रेडिशनली इट अकर्स डायरेक्टली बिटवीन पार्टीज एंड इसमें इट डज नॉट इन्वॉल्व अ थर्ड न्यूट्रल पार्टी. हम क्या करते हैं, दो पार्टीज इकट्ठे बैठ गई, पार्टी ए पार्टी बी, कोई भी डील उनको फाइनलाइज करनी है वो नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं, ये वाले क्लॉज हमें एक्सेप्टेबल हैं, ये नहीं है, सो एंड सो फोर्थ. सो नेगोशिएशन हैपन्स बिटवीन टू पार्टीज. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट कम्स टू मीडिएशन, जिसकी अभी बात हो रही है. नाउ मीडिएशन, एंड मीडिएशन व्हाट हैपन्स, अ वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसेस दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो. ठीक है, एनी डिस्प्यूट हैड अरिजन, देयर कम्स दे मेक इट श्योर कि एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी आए एंड फ्रॉम देयर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज कैरिड आउट. नाउ देन देयर कम्स कोलैबोरेटिव लॉ. What does collaborative law? Both the parties, they are represented by a collaborative attorney and both parties agree to litigate. ठीक है, so litigation के process में आ गए हैं. This comes under collaborative law. Now we talk about arbitration. Now if we talk about arbitration, neutral arbitrator renders a decision called an award after there has been presentation of evidence. So after evidence, a neutral third party person comes and he gives you the decision based on the evidences, not based on the arguments or the conditions that are acceptable to both parties, but it entirely depends on evidences. ठीक है, now arbitration के लिए international arbitration council है and there are n number of other institutes, other bodies जो इसको पूरा oversee करती हैं. Then we talk about conciliation. So conciliation में क्या होता है? There comes a neutral third party which what does is which communicates with parties in the exchange of of information and settlement options. ठीक है, so there are 5 types of ADRs. ADRs are alternate dispute redressal mechanisms. So these are the things जिससे आपका कोई भी issue होता है, dispute होता है, they are settled in योर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या फिर अगर इंटरनेशनली कोई इशू आ रहा है तो. नाउ
इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है, जो आपका वोडाफोन का इशू हुआ था रिसेंटली, दैट वेंट टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर आर एन नंबर ऑफ इशूज. टैक्स इवेजन ऑल्सो इट गोज टू many a times it goes to International Arbitration Council. Now if we talk about the features of the mediation bill, Rajya Sabha में present हुआ है, so what are the basic features? Let's discuss those. First feature is it aims to promote. Aim क्या है basic bill का promote करने का? It wants to promote, encourage and facilitate mediation. ठीक है. Also especially institutional mediation, basically to resolve disputes, कमर्शियल एंड अदरवाइज, जिसमें कि आपके सिविल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रपोजल ऑफ मैंडेटरी मीडिएशन बिल जो है, इट फर्दर प्रपोजेस मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन. ठीक है, बिफोर लिटिगेशन इट प्रपोजेस दिस. ऑल्सो एट द सेम टाइम इट सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ लिटिगेंट्स, सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ लिटिगेंट्स टू अप्रोच कॉम्पिटेंट, जो भी आपका एजुकेटिंग फोरम हो गया, ठीक है, नाउ कोर्ट हो गया या जजमेंट ट्राइब्यूनल हो गया, जहाँ पे भी आप जा रहे हो टू फाइल द लिटिगेशन, इट मेक्स इट अ पॉइंट कि लिटिगेंट्स आपके सेफ गार्डेड हैं. इफ वी टॉक अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इम्यूनिटी, मीडिएशन प्रोसेस जो है इट विल बी कॉन्फिडेंशियल एंड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट डिस्क्लोजर इन सर्टेन केसेस. जहाँ पे आपने NDA साइन करा होता है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन होते हैं, वहाँ पे if there is a clause, उस केसेस में if it goes to the court, if it goes for litigation, तो जो आपको certain type of immunity है वो वहाँ पे provide करी जाती है. Now once the mediation is done, outcomes क्या आते हैं? Outcome of the mediation process जो है in the form of mediation settlement agreement, जिसको बोला जाता है MSA. Very popularly corporate structure में इसको MSA बोला जाता है. तो that it will be legally enforceable. ठीक है, once the decision has been reached, जो भी agreement होगा आपका, this is legally enforceable. Now it can be registered with state, district, तालुक legal authorities within 90 days का आपको time frame दिया गया है. It has been given 90 days का time to ensure authenticated records of जो भी आपकी settlement हुई है उसकी. ठीक है, they are going to provide you authenticated records for the same. नाउ चैलेंजिंग द आउटकम की बात करें, सिंस जो आपका MSA है इट इज़ आउट ऑफ कंसेंशुअल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, जो चैलेंज है इट इज़ द सेम दैट हैज़ बिन परमिटेड ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स. तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर जगह इसको वैलिडिटी मिलेगी. द चैलेंजेस आर ऑन लिमिटेड, द चैलेंजेस आर परमिटेड लिमिटेड ऑन very little number of grounds where you can actually file everything. Now the whole bill it provides for setting up of mediation council of India, एक body बनाता है, and ultimately it also provides for community mediation. Now if you talk about qualifications and appointment of chairperson and members of mediation council, so जो chairperson है he is going to be a full-time member and he will have to be of some shown capacity and knowledge and expert in mediation. तो आपका जो background है, academic background हो गया या professional background हो गया, this has to be from the field of mediation, so you have some experience about how things actually function. Now according to present provisions जो है bill के, people who are dealing with problems relating to ADR, alternative dispute resolution जो है आपका, people who have been dealing with the problems with these, they can become the members and chairman of the council. Right now ये है. Now bill तो आ गया राज्यसभा में, but again with every bill there are some loopholes, there are some concerns. Concerns क्या हैं? According to bill जो आपका प्री लिटिगेशन है, प्री लिटिगेशन का पूरा प्रोसेस है and mediation, this is mandatory for both parties. ठीक है, both parties के लिए this is mandatory before filing any suit or proceedings in a court, whether or not there is a mediation agreement between them. Now parties who fail to attend जो आपका pre litigation mediation है without a reasonable reason may incur a cost. लेकिन again ये this is seen as a drawback कि दोनों parties को करना है and whoever fails
they will have to incur a pre-litigation cost. Side by side, if we talk about Article 21 of the Indian Constitution, as per the article, access to justice जो है आपका, this is a constitutional right which cannot be feathered or restricted. तो यहाँ पे अगर दोनों parties को litigation नहीं है, pre-litigation नहीं है, so you don't have the access to the whole process, but it is in direct conflict with जो आपका Article 21 of the Constitution है ये, ठीक है. पहला इशू तो है ये आया. इसके बाद बात करते हैं क्लॉज ऑफ जो कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन है. अकॉर्डिंग टू क्लॉज 26 जो है आपका ऑफ द बिल, कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन जो है इंक्लूडिंग प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ठीक है, दिस विल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शंस और रूल्स जो है फ्रेम्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा जो फ्रेम्ड है उनसे रिलेटेड है. नाउ where the countries that follow आपका common law system, it is a healthy tradition in which in the absence of statutes जो आपकी apex court मतलब जो भी highest ranking court हुई उस country की, ठीक है, their decisions carry the same weight as that of the council, ठीक है. so दूसरा issue यहाँ पे ये निकल के आया. side by side, a moment a law is passed, it becomes guiding force rather than instructions given by the court. Therefore, जो आपका clause 26 है, this is criticized for again being unconstitutional, ठीक है. ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया है, आर्टिकल 21 से कन्फ्लिक्ट में है. देन क्लॉज 26 जो है आपका, दिस इज सेड टू बी योर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. नाउ इफ यू टॉक अबाउट जस्टिस के पार्ट पे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट पे, क्रॉस बॉर्डर मीडिएशन हो रहा है इन इंडिया इफ द बिल कम्स इनटू प्ले. नाउ द बिल इट कंसिडर्स इंटरनेशनल मीडिएशन टू बी डोमेस्टिक जब ये इंडिया में कंडक्ट होता है. सो द जजमेंट है इसका, दिस विल हैव द डिक्री ऑफ अ कोर्ट. बट सिंगापुर कन्वेंशन जो है विच इज द यूएन कन्वेंशन, इट डज नॉट अप्लाई टू सेटलमेंट्स दैट ऑलरेडी हैव द स्टेटस ऑफ जजमेंट और डिक्रीज. सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो भी रिजल्ट इंडिया में आएगा, जो भी लिटिगेशन होगी, वट एवर रिजल्ट हैज बिन अवॉर्डेड, ठीक है, नाउ क्रॉस बॉर्डर मीडिएशन जो भी होगा, इट विल एक्सक्लूड इंडिया फ्रॉम अ ट्रेमेंडस वर्ल्ड वाइड इन्फोर्सिएबिलिटी. सो क्या होगा, इंडिया के कोर्ट ने जो भी आपको एक डिक्री दिया है, दैट कैन बी चैलेंज्ड इन सम अदर प्लेसेस, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस जहाँ कहीं और हो रही हैं, एंड अगेन इट विल नॉट हैव अ वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट. तो बेसिक जो होल प्रोसेस का बेसिक इंटेंशन है दैट फेल्स. नाउ इस पूरे केस पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज केम. व्हाट दे हैव सेड इज, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने कहा है वी नीड टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड प्री लिटिगेशन और मीडिएशन है, दिस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ फेज्ड मैनर. इंस्टेड हम इसको इंट्रोड्यूस करें विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर ऑल सिविल एंड कमर्शियल लेवल डिस्प्यूट्स, ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट में द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी सेज कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशन के बारे में अगेन क्लॉज 26 पे ऑब्जेक्शन आया बिकॉज इट इज सेड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, as it is against the spirit of the constitution. Now specific provisions जो हैं they should be made about जो court annexed mediation है provided in your clause 26, right. Now panel ने और क्या provide करा, panel ने provide करा that court annexed mediation जो है which includes your pre-litigation mediation in the court annexed mediation center, ये conduct करा जाए in accordance with the practice and direction of the rules by whatever name they are called by the Supreme Court और High Court, ठीक है. तो बहुत सारे इसके अंदर issues आ रहे हैं निकल के. Also if we talk about the appointment of officials, appointment of chairperson हो गए, members of the mediation council हो गए, they should be made by a selection committee which is constituted by a central government, ठीक है. अभी इसके ऊपर there is no as such clarity कि members कहाँ से constitute करे जाएंगे, कहाँ से nominate करा जाएगा. Also if we talk about definition of mediation, the existing definition जो है this needs to be reframed. The definition of mediation itself
is put into question. Redefining mediation में क्या चाह रहे हैं हम? We have to do it in such a manner that it reflects the intent of provisions contained in clauses both 17 and 18 of the bill. ठीक है. Now the whole point is, अगर आप देखो इंडिया को as a country बहुत ज़्यादा important है कि such type of innovation, such type of courts are set up in India so that इंडिया को एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लेके आ पाए हम. एंड जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इसको इंडिया का एक जो आपका सॉफ्ट पावर टेक्निक है उसको एक बहुत ज़्यादा हम वर्ल्ड वाइड उसको क्रेडिबिलिटी उसकी इस्टेब्लिश कर पाएँ. ठीक है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ वेरी इंटीग्रल टू इंडिया. Now let's talk about our second topic for today, financial viability of election promises. So as you all know, इंडिया में हर साल इलेक्शन होते हैं, ऑलमोस्ट किसी ना किसी स्टेट में हर साल इलेक्शन होता है. ईदर आपका लेजिस्लेचर का होता है या फिर आपका जो पंचायत का हो गया, छोटे छोटे इलेक्शंस होते हैं. देयर आर ए नंबर ऑफ इलेक्शंस. ठीक है. लोकसभा हैपन्स आफ्टर एवरी 5 years. तो even that if you see there are a number of things that have come into play. Election Commission of India ने इसको strictly question करा है. The problem is why this was in news recently. If you see Election Commission of India, it asked parties to explain कि जो आप पोलिंग के टाइम पे इलेक्शंस जब आप चुनाव प्रचार कर रहे होते हो उस टाइम पे whatever promises you do to the people, you keep to the people, how are you going to fulfill those? Now if you talk about Election Commission of India, it wrote to parties. ठीक है. They have written it, given it in writing to the parties to propose, and they have proposed that they have to spell out ways and means in which they will raise additional resources जो भी इनके फाइनेंशियल प्रोमिसेस हैं उनको पूरा करने के लिए. मीनवाइल इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? इट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड देम टू असेस इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन सस्टेनिंग जो आपकी फिस्कल सस्टेनेबिलिटी है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कॉन्टिन्यूस एक इशू आ रहा है. इशू क्या है? इलेक्शंस अगेन आई टोल्ड यू दे आर हेल्ड फ्रीक्वेंटली इन इंडिया एंड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक compete करने के लिए ग्राउंड मिल जाता है. So what they do is they make a lot of promises and they are made without having any sort of financial stability, financial implications, and उसका पूरा जो impact आता है that comes on public exchequer. Now most states की अगर हम बात करें तो they do not have any sort of cushion to spend money as freebies. ठीक है. And अगर आप उनके प्रोमिसेस देखो तो दे आर मोस्टली इर्रेशनल प्रोमिसेस. नाउ पॉइंट इज ये सारा प्रोसेस होने के बाद व्हेन दे आर बाउंड टू फुलफिल देयर इलेक्शन प्रोमिसेस, मोस्ट स्टेट्स दे गो अंडर फिस्कल डेफिसिट्स एंड वो फिर ना पूरी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा वर्स इम्पैक्ट करता है, बोथ इफ़ यू सी इन नेशनल टर्म्स एंड इन इंटरनेशनल टर्म्स. फ्रीबीज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी बोला था अ कपल ऑफ मंथ्स हो गए, आई गेस 2 months बैक, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इशू लेके आए थे कि जो फ्रीबीज है, इशू कंसर्निंग फ्रीबीज है, दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इट अल्टीमेटली रिक्वायर्स डिबेट. नाउ डिटेलिंग द रिसोर्सेज स्पेंडिंग एंड इम्पैक्ट की हम बात करें तो the parties what they'll have to do, they'll have to detail how they propose to raise additional resources to finance जो schemes हैं आपकी if voted to power, like whether they plan जो आपका increase in tax है, non tax revenue है. ठीक है. whether they want to rationalize expenditure है or they want to go for additional borrowings from market for whatever means they can find, or they have to do it in any other manner, इसको उन्हें explicitly state करना पड़ेगा. Election Commission, what else it has said? It has said in a letter that all recognized national and state parties, they will have to give a disclosure pro forma जिसके अंदर सब कुछ लिखा होगा कि from where you've gotten the funds and how they have been utilized. Pro forma means everything has been written from scratch.
ठीक है, फॉर देम टू डिक्लेयर। अब इसमें क्या क्या डिक्लेयर करना है, दे विल हैव टू डिक्लेयर क्वांटिफिकेशन ऑफ फिजिकल कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स दैट हैज बीन प्रॉमिस्ड, then financial implications of promise and availability of financial resources, also जो impact है of additional resources of raising plan for fulfilling the promise on fiscal sustainability of state and union government, they will also have to be spelled out very clearly. Now इसमें क्रिटिसिज्म क्या निकल के आया, कुछ भी इशू आता है हमेशा देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। नाउ इसमें क्रिटिसिज्म क्या निकल के आया, इलेक्शन कमीशन के इस मूव से इट हैज़ ड्रॉन अ शार्प रिएक्शन फ्रॉम मेन ऑपोजिशन, जिन्होंने क्या बोला है, जिन्होंने ये बोला है कि दिस इज़ नॉट बिजनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट द फिजिकल और मॉनिटरी इश्यूज, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कंडक्ट करवाना एंड दिस इज नॉट देयर प्रोगेटिव। नाउ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, schools and other facilities to people is core responsibility of any government, लेकिन this part comes under administration. If you see तो फ्रीबीज जो प्रोवाइड करी जाती हैं, फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, दे प्रोवाइड यू विथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वेव ऑफ कर दिए जाते हैं। ऑल्सो देर आर एन नंबर ऑफ इलेक्शन पार्टीज जो आपको साइकिल्स प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव कम इन टू लाइमलाइट and critics they have also quoted that this goes against the way and essence of spirit of competitive politics, ठीक है। अब वही है बेसिकली क्या है कि सिग्निफिकेंस अगर आप देखो ऑफ डिक्लेयरिंग वेज ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज की बात करें, बेसिकली होता क्या है, इलेक्शन के टाइम पे प्रोमिस कर देते हो इलेक्शन जीतने के लिए, देन 5 साल निकल जाते हैं, यू डोंट वर्क फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। उस टाइम 5 साल यू सॉर्ट ऑफ ट्रीट एवरी वन द वे यू वॉन्ट टू ट्रीट, ठीक है, ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क होता नहीं है, पीपल्स एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एंड देन द विशियस सर्कल स्टार्ट्स। नेक्स्ट इलेक्शन का राउंड जब आता है, यू कीप ऑन प्रॉमिसिंग दिस फ्रीबीज की इसलिए लोग हमें वोट दे देंगे। सो बेसिकली सारा गेम आता है आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स का। नाउ अगर हम इम्पैक्ट ऑफ पोल प्रोमिसेस की बात करें तो एम्प्टी पोल प्रोमिसेस दे हैव फार रीचिंग रैमिफिकेशंस। एक व्यू क्या निकल के आया यहाँ से, व्यू हैज़ इमर्ज्ड कि जो पोल वॉचिंग डॉग है, मतलब इलेक्शन कमीशन है, इट कैन नॉट रिमेन अ म्यूट स्पेक्टेटर एंड ओवरलुक जो अनडिजायरेबल इम्पैक्ट्स आते हैं आपके ये फ्रीबी डिस्ट्रीब्यूशन के। देयर नीड्स टू बी अ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो भी डिस्क्लोजर प्रोवाइड करा जा रहा है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, दिस विल ब्रिंग अ स्टैंडर्डाइजेशन इन द होल प्रोसेस, सारी पार्टीज के लिए दिस इज गोइंग टू बी सेम। देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, सो टू मेक दीज स्टेप्स मैंडेटरी, इलेक्शन कमीशन ने प्लान करा है कि देयर विल बी ब्रॉट अ अमेंडमेंट इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके लिए इलेक्शन पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज विल बी बाउंड टू फॉलो दीज रूल्स। ऑल्सो फ्रीबीज की बात करें, अगेन बिफोर एवरी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया की, दे प्रॉमिस सर्टेन हेल्थ एंड एजुकेशन बेनिफिट्स बिसाइड्स जो आपकी फ्री वाटर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अल्टीमेटली इट हैज़ रैमिफिकेशंस फॉर द पब्लिक एक्सचेकर्स, ठीक है। नाउ रीजंस अगर आप देखो फॉर दीज गिविंग दीज फ्रीबीज इज फेलियर इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेसिकली, ठीक है। आप ये देखो, लिकर इज समथिंग विच इज ऑलमोस्ट गिवन इन एवरी इलेक्शन एंड देर आर सर्टन स्टेट्स जहाँ पे देसी घी तक प्रॉमिस करा गया है कि आप हम जीत के आएंगे तो हम आपकी फैमिलीज को घी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी द डायर डेस्परेशन कि आपने डेवलपमेंटल वर्क करा नहीं है एंड व्हेन अगेन द टाइम ऑफ इलेक्शन कम्स यू जस्ट मेक फेक प्रोमिसेस एंड फिर आप अपनी स्टेट को फिजिकल डेफिसिट में लेके जाते हो। नाउ फ्रीबीज देने के साथ इशू क्या है, इट क्रिएट्स फाइनेंशियल इरेगुलरिटी। आज की डेट में आपके स्टेट के पास पैसा है, आपने इलेक्शन जीत लिया, पैसा सारा आपने इलेक्शन प्रोमिसेस पूरा करने में लगा दिया, तो आगे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए या कोई भी चीज़ फंड करनी है आपको, वहाँ से आप पैसा कैसे लेके आओगे, देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग देयर। नाउ बर्डन पब्लिक एक्सचेकर पे पड़ता है, आपकी अपनी जेब का पैसा तो नहीं था, टैक्स पेयर्स मनी है, तो आपने वो अगर अपने इलेक्शन प्रोमिसेस फुलफिल करने में वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो where is the money for public developmental works going to come from? Then वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है, ठीक है, सारी पार्टीज दे एक्सटेंसिवली प्रमोट, हम ये देंगे आपको, हम ये देंगे। सो अल्टीमेटली दैट इट गिव्स
a very far reaching ramifications to the whole process of elections in general, then जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड ग्राउंड है, इक्वालिटी वाला सिनेरियो है, वो खत्म हो जाता है. ठीक है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज दैट हैव रिजन फ्रॉम हेयर एंड इलेक्शन कमीशन हैज बीन पॉइंटिंग इट आउट टाइम एंड अगेन. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इट्स अ पॉलिटिक इलेक्शन वॉचडॉग. ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950. It is an autonomous constitutional body and it is responsible for conducting both national and state elections. Now elections कहाँ कहाँ के cater करती है? ये लोकसभा के करती है, राज्यसभा, state legislative assemblies, state legislative councils and offices of president and vice president. ठीक है, now they are not concerned with elections to panchayats and municipalities. ये self governing रहते हैं. And for the Constitution of India, it provides for a separate election commission of India in totality. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का एक मेजर कंसर्न आया है. देखते हैं पॉट पार्टीज का इस पर क्या रिप्लाई आता है. दिस शुड बी इंटरेस्टिंग. जैसे इसमें आगे ऐड ऑन होगा, विल टेक अप दिस टॉपिक अगैन. राइट, नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड टॉपिक फॉर टुडे. योर थर्ड टॉपिक फॉर टुडे इज यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स युवा. ठीक है, एकेडमिक से रिलेटेड है. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च करी है फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स. युवा 2.0 was launched recently. Now basic purpose क्या है स्कीम का? The scheme is to have a vision to encourage जो आपका youth है to understand and appreciate India's democracy. Now जो इसकी implementing body है, which is going to be the implementing body, National Book Trust of India under which comes under your Ministry of Education. पहले Ministry of Human Resource Development थी, अभी it is Ministry of Education. This is the implementing agency which is going to ensure एक आपका phase wise execution हो of the scheme under well defined stages of mentorship. Similarly इसका aim क्या है? It aims to promote reading, writing and book culture in the country जो बहुत speedily खत्म होता जा रहा है. If you talk about the significance of the scheme, it is going to develop a stream of writers. It is going to develop a stream of writers who can write within a spectrum of subjects which can be your Indian heritage system, culture system, knowledge system, etc., etc. So there is going to be a wide range of topics from which students are going to be promoted to become young authors. Similarly, this is also going to provide a window to जो aspiring youth हैं आपके to articulate themselves in a democratized manner to value the democratic value system of India and proceed in the world accordingly at the international platforms. Right? So these were the 3 important newses जो हमने आज cover करी हैं. I hope these topics are clear. If you have any doubts, you can mention them in comments. I'll try taking them up in next class. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.